Hello and welcome to Chapter 16 Waste Management Impact of Waste Accumulation Standard 10 Geography. Hi students, how are you all? We are reading about lesson number 16. It's about waste management. Let me tell you before we start waste management and all that, we have 4 chapters in this unit. Out of these 4 chapters, 10 marks question will come, and this chapter is quite very easy and it is in 4 parts which we will read. The other 3 parts are very small, but first of all we will read about the waste management impact of waste accumulation. What is the meaning of accumulation? Accumulation is to होल्ड अप, पाइल अप और टुगेदर और गेट टुगेदर, जिसको हिंदी में बोलेंगे इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं. वी विल रीड अबाउट दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट accumulation. You see, waste generated due to human activities is directly related to human development, both technologically and socially. So, ये क्या है? Generated to human activities. Wow. Waste is useless and unwanted material that has no further use. Waste क्या है? एक useless चीज है जिसका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रह जाता. हम waste को trash भी बोलते हैं, rubbish भी बोलते हैं, refuse, garbage, junk, ये सब चीज हम लोग उसको waste को बोलते हैं. Waste may be generated due to the extraction of raw materials, or I'm giving you the very important points to read. We have to read the whole chapter. Let me suggest you once again, you have to read the chapter word by word, because this video cannot be go through the whole word to word reading chapters, because it will be a very long video. That's why I'm giving you very small and short and very important points to read. Growth in population cities converting into metropolitan city is also reason of the waste accumulation. Now, see, man-made waste not only has adverse effect on surrounding but also cause health hazards. It is about increasing population, the garbage accumulation is there. Spoilage of landscape. First of all, the impact. If we read about the impact, the first impact is spoilage of landscape. Spoilage of landscape is the lapse of rubbish, garbage, and trash in urban areas, left uncared or untreated. And उससे क्या होता है? Sort of insects, flies, and mosquitoes उसमें पैदा होते हैं. Waste collected from industries, mines, and hospitals may contain toxic material. ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं हमारे सेहत के लिए. Next is pollution impact of an human on environment. अब जो हमने पोल्यूशन पैदा कर दिया ह्यूमंस ने, उसका एनवायरनमेंट पे क्या फर्क है? सी, सब्सटेंसेस कॉजिंग पोल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स, तो जो सब्सटेंस पोल्यूशन बनाते हैं वो है पॉल्यूटेंट्स. अब और क्या होते हैं पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन, जो केमिकल पार्टिकल्स और बायोलॉजिकल मटेरियल की वजह से जो हार्म और डिस्कम्फर्ट करता है ह्यूमन को, एयर पोल्यूशन. दिस इज द डायग्राम विच माइट कम इन पेपर. इसको ध्यान से पढ़ना. द 10 मेजर पॉल्यूटेंट्स, ये सारे जो हैं जो हमारी हवा को खराब करते हैं. अब एयर जो पोल्यूशन है, दिस इज एयर पोल्यूटेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट और गैसेस. आप इनको ठीक से पढ़िएगा. इसकी जैसे यह लिखा है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको एसपीएम बोलते हैं. यह है प्राइमरी पोल्यूटेंट कैन एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर एंड इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एसपीएम. दिस माइट कम इन पेपर, सो मैंने इसको इसलिए टिक कर अंडरलाइन कर रखा है. नाउ ओजोन का जिक्र है इसमें. डेफिनेटली एयर पोल्यूशन जो है वो ओजोन को खराब करेगा. उसके बाद आती है एसिड रेन. अब हवा खराब होगी तो डेफिनेटली इसमें जो चीज़ें हैं SO2, NO2, ये सब मिक्स होकर जो हवा में रिएक्ट करेंगे और एसिड रेन का कारण बनेंगे. उसके बाद सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड जो रेन में और जो स्नो में मिक्स होता है. उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो फॉल ऑन द अर्थ, उसको बहुत से फॉरेस्ट, फिश, एनिमल्स हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो ये है बैड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. अगर एयर पोल्यूशन बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्रिएटेड प्राइमरली बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल कंट्रीब्यूट्स टू द problem. This is also a big problem, and this is very common. Chlorofluorocarbon, CFC, which are come from refrigerators,
also contribute to the problem. So, guys, you have to read all these things properly so we may understand, because this is very important thing to read. Reading is must. Let me remind you, reading is must. Ozone in the lower atmosphere contributes to air pollution. इसके बाद smog, there is a London type smog आती है. Smog क्या होती है? It is a mixture of combination of smoke and thick fog that hung over London. इसको हम लोग बोलते हैं लंदन टाइप, और ये आजकल हर जगह पे है. इंडिया में भी स्मॉग बहुत सर्दियों में बढ़ जाती है. समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ समटाइम्स ऑल्सो. तो दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज डेंजरस फॉर लंग्स एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस अटैक्स द लंग्स एंड मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट. इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं? सीवेज में. यूट्रोफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर बार हर पेपर में आता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज occurring either natural or due to human activities. इसके बाद अलगी और फाइकोप्लैंक्टन जो होता है वो अर्थक्वेक डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक और फोटोस्फेयर फ्रॉम द वाटर एज फूड. इसके एक में वर्ड आ रहा है इसमें जू प्लांटिंग. जू प्लांटिंग क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, उनको बोलते हैं जू प्लांटिंग. स्मॉल फिश फीड ऑन दिस जू प्लांटिंग एंड लार्ज फिश इन टर्न कंज्यूम दिस स्मॉल फिश. जो जू प्लांटिंग है ये बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको छोटी मछलियां खाती हैं और फिर इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं. इफ ऑक्सीजन एंड लाइट हीट इनटू वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड, ये उसकी वजह से, जैसे ये ऊपर जो हरा हरा सारा जम जाता है तो उसके अंदर जो फिर लाइट और ऑक्सीजन नहीं जाती है तो ये वाटर एनिमल्स जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं. उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. देन वी विल रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन लाइफ. आप गंदा पानी पियेंगे तो क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं. तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ा है? एक्सेसिव CO2 and chlorine in the water kills fish. The contaminated water leach into groundwater or flow into neighboring water. The leachate from the water waste dump carry residue of insecticides, herbicides and pesticides and other chemicals. तो तीसरी चीज आती है ऑयल स्पिल. ऑयल जो हम जाते हैं जैसे डीजल पेट्रोल या बाकी होते हैं, और स्पिल मतलब क्या है? जो उसको बोलते हैं वो लीक हो जाना और मिक्स हो जाना पानी में या साफ पानी में कहीं पर भी. Oil spills are hazards for human life as oil being vicious in nature does not mix in water. तो अगर वो वाटर में जाएगा तो डेफिनेटली मिक्स तो होगा नहीं, और मिक्स नहीं होगा तो वो मछलियां वगैरह उसमें सांस कैसे ले पाएंगी और वो मर सकती हैं. सॉइल पोल्यूशन, ये पोल्यूशन की एक और किस्म है जिसमें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन कैसे हमारे एरिया को खराब करती है, हमारी धरती को खराब करती है. सॉइल पोल्यूशन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इन द सैनिटरी हैबिट्स. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर मैंने टिक किए हैं वो है द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड पोल्यूशन डिफर्स फ्रॉम वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन द रिस्पेक्ट दैट पोल्यूटेंट रिमेन इन प्लेस फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड्स. डायरेक्ट पोल्यूशन of land of pathogenic organism also increase toxicity in soil. Microorganisms enter the food chain in the water and also consequently ingested by them. Please read these things properly. अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन माई मोबाइल नंबर और माई व्हाट्सएप नंबर. बायोमैग्निफिकेशन एंड सॉइल पोल्यूशन. ये सॉइल पोल्यूशन और बायोमैग्निफिकेशन जो चीज़ें हैं ये है. The term biomagnification means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. इसकी definition ये है. अब they are deposited in the tissue of terrestrial plant and aquatic organism. अब health hazard caused by waste. अब health hazard के लिए मैंने कुछ points नंबर 2, 5, 6 और 7 इनको जरूर पढ़ना. बाकी सारे भी पढ़ना लेकिन इनको स्पेशली पढ़ के जाना. For example, particularly organic domestic waste pose a serious threat since they ferment. Agriculture and industrial waste cause serious chemical and radioactive hazards to human life and ये सब चीजें. और finally, effects of waste on aquatic life. Aquatic life क्या होती है? जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे फ्रेश एंड मैरीन लाइफ पे. इसमें क्या है? फिश एंड
अदर मैरीन लाइफ, ये है एक्वाटिक लाइफ। अब इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, वो मरने शुरू हो जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में क्या है, डीडीटी इज मोस्ट वाइड स्प्रेड मैन मेड पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, इट इज फैटल टू फिश, मतलब फिश के लिए खतरनाक है। द टॉक्सिक metals like lead, arsenic, copper, cardamom, mercury, and nickel are also harmful to marine life. Freshwater marine life, इन पे क्या है, earthworms and other soil organisms are extremely susceptible to the cadmium poisoning. Chronic poison result from consumption arsenic, lead and methyl molybdenum. अब ये जो सारे आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको या तो गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी पैरा लाइन और एनी सेंटेंस, you can ask me on my WhatsApp number. And as I told you that everything cannot be explained in a small video, but I will explain you whatever is left in my online class as well, and you can ask me this in my WhatsApp also. So then after, please go through the content analysis in brief as well, and there are अराउंड 18 क्वेश्चंस, मैंने इन सब क्वेश्चंस की आंसर की बनाकर आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है, या आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगी बहुत जल्द। और आंसर की आपको जब सारी बनी बनाई मिलेगी तो इट विल बी इजी फॉर यू। सो आई होप इफ़ यू रीड योर सेल्फ यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सब वर्ड बड़े कॉमन है, कुछ नए वर्ड्स होंगे तो वो नए वर्ड यू कैन आस्क मी इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय।